Now see one very interesting discussion that I faced. This is a body of mass m, spring constant k. This body is already having some extension. This spring is already having some extension x1 already. And now at this instant I am giving it a velocity u0 when it is already having this extension x1. Find how much will it move further. Already extension is x1 and given a velocity like this, find how much more will it move further before it stops. Let us see. Tell me, how did you do it? Should we tell me the steps? Initially अभी उसका है half mu0 square और plus half k x1 square. We are just saying energy conservation. Please pay attention. Initially the body has kinetic energy. Yes or no, Kritika? Yes sir. What is the kinetic energy? तो काइंडली हमें निकालना है कि कितना और मूव करेगा. कितना और? ओके फिर थोड़ा सा चेंज हो. करो. चलिए मैं करके दिखाता हूँ. Let's see. And then we'll see if your answer is right. देखिएगा ध्यान से. कृतिका आप आंसर करेंगी. What is the initial energy of the system? Total energy. Sir, it'll be half mu0 square. अच्छा, tell me, is there any friction force here? No. All the forces that are acting, all the forces that are. Sir, on the surface you have made is not frictionless. No, it doesn't matter. Law of That doesn't mean. it doesn't make a difference, but we do. Okay, right. Now, so there are no non-conservative forces. All the forces are conservative forces. Energy conservation will take place. Please tell me, Kritika, what is the total energy of the system initially? Sir, half mu0 square. Sir, quadratic में problem है. Yes. Continue, Kritika. This is the kinetic energy plus. Yes. Plus Energy stored in the spring. the half k x1 square. Right? Yes, sir. That'll be. This is the total energy Yes, sir. stored initially. Yeah. So is equal to half k plus k x plus x1. X plus x1 whole square. क्योंकि फाइनली काइनेटिक एनर्जी विल बिकम. तो इससे क्वाड्रेटिक आ रही है, ठीक है ना? हाँ, काइनेटिक एनर्जी विल फाइनली बिकम जीरो. नमन, आपने ये किया था? सर नहीं सर, वो काइनेटिक एनर्जी वो वाला गलत दिया, बाकी तो सीख था. x1 plus x वाला. ये वाला था. यस सर, वही वाला मिस कर दिया. आपने खाली हाफ के एक्स स्क्वायर कर दिया. नहीं सर, के एक्स नॉट ले लिया दूसरे डिस्प्लेसमेंट को. हाँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? मतलब आई डिडंट टेक इट एज x1 plus x, I just took it as x naught. अच्छा, ओके दैट. हाँ, तो you can take it as x naught and that x naught minus x1 will be the answer finally. You can say final extension is x naught. फिर उसके लिए इजियर है एक्चुअली, बिकॉज़ नहीं, मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ. ठीक है, क्वाड्रेटिक मिलती है ना. मैं बोल रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ से x naught निकाल लेंगे. x naught is the new extension. New extension minus original extension. So final answer is ये. बहुत ज्यादा करेक्ट ही लग रहा है सिचुएशन में. देखिए सर ऐसे ही कुछ हो रहा है सर मेरा. मतलब और फिर x नॉट में माइनस कर दिया. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन. Please tell me what is that extension? The extension would be mg by k. Yeah. mg by k. Yes. And it is at equilibrium. Now, the question is, if I give it a velocity u0, the further extension it will have, will it be, देखिएगा, first is, will it be, I am giving you 4 alternatives, then you tell me which is. ठीक है, चलिए देखते हैं. So tell me what will be the final extension. What will be the maximum further extension it will have. Okay, I am just asking you a basic question right now. Just answer, will it be same as half m u0 square is equal to half m u0 square is equal to half kx square? Will it be same as that or not? Yes or no? No, sir. Are you 100% sure of it?
Yes, sir. Are you really confident about it? Yes, sir. So we are ready to ना बोलोगे आप तो बहुत better. Suppose I give you 100 times the amount of confidence you invest in. 100 times of that. Would you like to invest? कॉन्फिडेंस कैसे दोगे सर? 100 times the amount you invest in your confidence. Yes. So Mayank, tell me how much amount you want to invest. Tomorrow the payment will be done. If you are see सर एक सेकंड क्वेश्चन फिर से सर प्लीज. क्वेश्चन सुन लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन. देखिए भाई, सुरभि जी, कृतिका जी, Yes, sir. ऊपर देखिए, ये एक बॉडी है, हैंगिंग है स्प्रिंग से, एक्सटेंशन है ऑलरेडी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है और अब यू नॉट वेलोसिटी दे दी और मैं बोल रहा हूँ हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. मैं बोल रहा हूँ उससे आंसर आ जाएगा कहां जाके रुक जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन. सो अब मेरा नहीं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ राइट या रॉन्ग, और अगर आप रॉन्ग के लिए कॉन्फिडेंट है तो आप बताइए. ये देखिए सुरभि कितनी शानी है, कितनी शानी है. शी इज जस्ट कैलकुलेटिंग इट थ्रू द राइट रूट एंड देन शी वांट्स टू बैंक. अभी है वो ऑप्शन. नहीं, देख के अगर आप बता सकते हैं इंट्यूटिवली ये राइट है या रॉन्ग है तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है. सर वैसे भी हम बेट नहीं करेंगे सर, आपका पिछला भी ड्यू है. लेना अभी जाना. लेना. सो बहुत इंट्यूटिवली आदमी को लगता है कि यार ये तो गलत होगा श्योर, क्योंकि स्प्रिंग में ऐसे नहीं हो सकता. अभी तो इसके पहले आपके माइंड को मैंने कंडीशनिंग की थी. अभी तो थोड़ी देर पहले समझाया था कि एक्सटेंशन अगर आगे एक्स हो तो यू हैव टू टेक द प्रीवियस एक्सटेंशन ऑल्सो. लेते हैं ना एनर्जी के लिए. और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि वो प्रीवियस वाले को भूल जाओ. हाँ, लेकिन इट इज आई विल एक्सप्लेन टू यू. कैन यू गिव मी द फिजिकल एक्सप्लेनेशन कि क्या हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है कि आई एम जस्ट सेइंग हाफ एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर और आ रहा है राइट आंसर. क्यों आ रहा है? Who will explain? नहीं, देयर इज अ डीपर मीनिंग टू इट. लेट मी सी हु कैन एक्सप्लेन दिस सिचुएशन. क्यों आ रहा है राइट आंसर? लेट मी सी. करा है इससे बता सकते हैं कि हाँ, मैथमेटिकली तो बता दिया आपने. आई एग्री, आई अप्रिशिएट दैट. बिग अचीवमेंट. नाउ कैन यू गिव मी द फिजिकल एक्सप्लेनेशन. क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों आ रहा है? ये तो ऐसे हो गया ना, तो मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स ली भाई, ये नीचे आया, आई शुड हैव टेकन इट mgh एनर्जी में, वो भी नहीं ली ना. स्प्रिंग की पहली वाली फोर्स ली, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग पहले से जो थी. वो क्या हो रहा है? इनिशियली ग्रेविटी का कंसिडरेशन ले ली थी बाय टेकिंग इट एज इसकी एक्सटेंशन जो थी ऑलरेडी. और फिर जब उसको वेलोसिटी दी तो फाइनली भी जाके वो सर ऑलरेडी उसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी थी सर, उसकी उतनी एक्सटेंशन की ऑलरेडी स्टोर थी, वो हम ले ही नहीं रहे हैं और फिर भी राइट आंसर आ रहा है. और ग्रेविटी को भी नहीं ले रहा हूं मैं, mgh जो होना चाहिए वो भी नहीं कंसिडर कर रहा हूं और फिर भी मेरा राइट आंसर आ रहा है गलत से तरीके से. वो क्यों आ रहा है? कौन एक्सप्लेन करेगा? ऐश्वर्या, यू हैव अ वेरी लॉजिकल माइंड. आई वांट योर ओपिनियन. आई वांट टू हियर. सर नमन, सर एक ध्रुव तो पहले ही ग्रेविटी का हमने कंसिडरेशन ले ली थी क्योंकि एक्स नॉट में हमने थोड़ी एक्सटेंशन ऑलरेडी थी. वो तो ठीक है, लेकिन आगे भी तो ग्रेविटी लग रही सर होगी. क्योंकि पहले ऑलरेडी इक्विलिब्रियम पे था तो जितना इक्विलिब्रियम सॉरी हाँ. तो जितना वो बाकी जो हमने एनर्जी दी है उसको काइनेटिक वही लेंगे. काफी क्लोज हैं आप, काफी क्लोज हैं. ध्यान दीजिए, देखिए एक खूबसूरत चीज देखिए कि इस वक्त mg इज इक्वल टू व्हाट. जब इक्विलिब्रियम है उस वक्त kx इज इक्वल टू, एनर्जी और g की वैल्यू कांस्टेंट है या नहीं है? यस सर. We are assuming it to be constant for small displacements. Now, if mg is constant and x की जो इनिशियल एक्सटेंशन है वो इसके इक्वल है और आगे कोई भी फर्दर एक्सटेंशन होगी वो लीनियरली प्रोपोर्शनल होगी उसके स्प्रिंग के, क्योंकि लीनियरली प्रोपोर्शनल है. तो इट मेक्स दिस फोर्स इनिशियली वाज इन इक्विलिब्रियम विद mg, therefore it was as if the body is stationary in a gravity free space. Yes or no? यस सर. The body is stationary in a gravity free space. ऐसे हो गया. अब इसके बाद कोई भी एक्सटेंशन आएगी तो स्प्रिंग में जो फोर्स आएगी वो वही आएगी kx. इफ इट मूव्स x, kx एक्स्ट्रा फोर्स आएगी.
और जो के एक्स नॉट पहले से फोर्स है वो mg को कैंसिल कर देगी। देखिए अगर ये x आगे जाए तो ये फोर्स होगी के एक्स प्लस एक्स नॉट। यस और नो? तो मैथमेटिकली तो हो ही गया था। यस यस, बट मैं उसको फिजिकली भी आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि इट मेक्स इट ग्रेविटी का हमने ऑलरेडी कंसीडरेशन में ले लिया हाँ। और वो फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो इसलिए उसका कोई राइट। रेलेवेंस नहीं होगा। इसलिए स्प्रिंग की जो फोर्स है इनिशियल वो ऑलवेज रहनी है स्प्रिंग के अंदर के एक्स नॉट, और वो mg भी ऑलवेज रहनी है, और mg और के एक्स नॉट बैलेंस्ड है, तो इसलिए उनका जो इफेक्ट है एनर्जी पे, समझ रहे हैं आप? इसलिए हमने इसे ग्रेविटी फ्री मान लिया कि वो mg को तो ऑलवेज बैलेंस रख रही है के एक्स नॉट, तो इसलिए हमने इसे ग्रेविटी फ्री माना। और फिर खाली हाफ एम यू नॉट स्क्वायर, जैसे स्प्रिंग एक्स के स्प्रिंग एम मास वी वेलोसिटी से पुश किया तो हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, वो वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। थोड़ा सा फीलिंग आनी चाहिए कि क्या कह रहा हूं। चलिए कमिंग बैक, आर यू क्लियर अबाउट एक्चुअल में कैसे करना है? प्रॉपर ये तरीका है, प्लीज सी दिस। प्रॉपर तरीका क्या होगा उसे सीखेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीधा आईआईटी लेवल इरोडॉफ का अच्छा क्वेश्चन होगा। अगर आपने वो क्रैक कर दिया तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लेकिन आप उसके पहले इसको समझ लीजिए मेथड क्या है इसका। देखिएगा, हम मान लेते हैं इसे कि ये x नीचे गया और वहां जाके रुका फाइनली x। नाउ अब देखिएगा, तो एनर्जी ऑलरेडी, टोटल एनर्जी इस वक्त कितनी है कृतिका आप बोलेंगी? इस पोजीशन पे व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? So half K. So we are including the initial. Yes, all the energy, total energy. So it's half mu naught square. Mu naught square plus half K x naught square. Yes, sir. Initially plus half K mg. Next, sir. Plus नहीं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh। जीरो मान रहे हो उस पर। हाँ, तो आप डेटम कहाँ चूज कर रहे हैं? डेटम मतलब रेफरेंस। आप जीरो पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ही लिया। तो यहाँ पे जीरो माना आपने, तो ऊपर mgh और नीचे माइनस mgh। तो अब आप बताइए क्या लिखूं? जीरो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्प्रिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ये है। अब मुझे आप बताएंगे, ये डेटम है हमारा, हमने रेफरेंस यहां माना है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, शुड बी इक्वल टू फाइनली एक्स नीचे गया। बोलिए आप तीनों को बोलिए, क्योंकि रुक गया यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन। और एक्स ले लो, माइनस mg x माइनस mg करेक्ट, इसमें भी put mg as kx. yeah, let us open this, so it will come out to be this square plus 2 x naught x1, so half k x naught square will get cancelled। तो यहाँ पे जो सेकंड है तो उसमें हाफ नहीं आएगा, उसमें x से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, हाँ। आपने खुला नहीं रखा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया हाफ m u नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k x1 स्क्वायर x1 स्क्वायर होल प्लस k x1 x0 x1 और mg का वैल्यू पुट करेंगे वो भी सेम आ जाएगा। mg को हम रख सकते हैं k x नॉट x1 सामने एक जगह x लिए एक जगह x लिए। हाँ, बस कैंसिल हो गया। yes, तो ये टर्म भी कैंसिल हो गई। फाइनली यू गेट द आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब अच्छा क्वेश्चन आप करके दिखाइए। नाउ योर ग्राउंड हैज बीन प्रिपेयर्ड, नाउ लेट मी सी हाउ गुड अ फुटबॉलर यू आर।